Hello friends, welcome to Bachao Classes. I am Bachao sir, director of Bachao Classes. बच्चों लोग we are studying Maths Part 2's first chapter जिसका नाम है बच्चों लोग Basic Concepts in Geometry. और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपकी concepts अच्छी है तो you will enjoy geometry. Otherwise you will feel that this is difficult subject. तो बच्चों लोग क्या करो, हमेशा अपनी concept बहुत बढ़िया रखो, अच्छी रखो, आपको ये subject बहुत अच्छा लगेगा. So look, we have in this chapter up to this, we have completed all the practice sets, and now today we are going to solve problem set 1. So look, first question of the problem set. Question is, select the correct alternative from the answers of the questions given below. Select the correct alternative. They have given 4 options and we have to select the correct option. But this type of question also asked in board exam also. 10 की बोर्ड एग्जाम में भी फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है बच्चों लोग कि सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव. 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है. तो चलो बच्चों लोग लेट अस डू प्रैक्टिस. हाउ मेनी, फर्स्ट वन इज हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव. तो बोलो बच्चों लोग, how many midpoints does a segment have? Suppose this is seg AB, then tell me how many midpoints does seg AB have? तो बच्चों लोग किसी भी सेगमेंट को कितने मिड पॉइंट्स होंगे? किसी भी सेगमेंट को एक ही तो मिड पॉइंट हो सकता है. मिड पॉइंट हम किसे बोलते हैं? सपोज M is point on seg AB, such that seg AM congruent to seg BM, then we can say M is what? Midpoint. तो बच्चों किसी भी सेगमेंट को कितने मिड पॉइंट्स हो सकते हैं? तो आपको ओनली 1. तो बच्चों लोग फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट के लिए? तो ओनली 1. सेगमेंट को 2 मिड पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? 3 मिड पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? मेनी मिड पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? तो बच्चों लोग नहीं, किसी भी सेगमेंट को ओनली 1 मिड पॉइंट होता है. तो चलो सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड में हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइंस. हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मींस बच्चों सेट ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइंस. बच्चों 2 डिस्टिंक्ट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. 2 distinct lines are intersecting. These 2 lines are intersecting. Then their intersection, point of intersection. So how many points are there in the intersection of 2 lines? अगर 2 लाइन intersect कर रहे means they are cutting each other. Then how many points are there in the intersection? इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स होंगे? तो देखो फिगर आउट बोलो. 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. क्या बच्चों लोग पॉइंट इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं? 2 पॉइंट्स हो सकते हैं. तो बच्चों लोग क्या इंटरसेक्शन में क्या होता है? एक सिंगल पॉइंट होता है. हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइंस. तो बच्चों लोग अगर 2 डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स होते हैं? ओनली 1. Answer C is the correct option. Now चलो third one. चलो third question. How many lines are determined by 3 distinct points? How many lines are determined by 3 distinct points? Means चलो in simple words, how many lines we can draw passing through 3 distinct points? चलो 3 distinct points, they are like this, or बच्चों लोग 3 distinct points, these are 3 distinct points, or बच्चों लोग they may be like this, they may be like this. 3 distinct points. 3 distinct points, they may not be collinear, they may be collinear. They may be collinear, they may be collinear, they may be non-collinear. बच्चों 3 distinct points वो collinear means they are lying on same line and non-collinear means they are not lying on the same line भी हो सकते हैं. हमें यहाँ क्लियर नहीं दिया है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या
नॉन कोलिनियर है। तो बच्चों 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये भी पोजीशन हो सकती है, ये भी पोजीशन हो सकती है। अगर ऐसी पोजीशन है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कोलिनियर है, तो बच्चों वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू दैट। If points are collinear, then we can draw what? Only one line passing. And if points are not collinear like this, not collinear, then bachalo see, we can draw line BC, we can draw line AB, we can draw line AC. Then in this case, if points are not collinear, then bachalo we can draw 3 lines passing through 3 distinct points. तो बच्चों का अपना आंसर होगा 1 और 3. We can draw how many lines? We can draw 1 or 3 because they have not given that points are collinear or non-collinear. अगर collinear है तो हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नॉन कोलिनियर है तो we can draw 3 lines. तो बच्चों का अपना आंसर होना चाहिए कौन सा? 1 और 3. 6 तो हम सोच भी नहीं सकते बच्चों. 6 lines can be drawn from passing through 3 distinct points. 9, 2, 3. बच्चों 3 में और 1 और 3 में कंफ्यूजन हो सकता है. 3 में और 1 और 3 में कंफ्यूजन आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ बच्चों लोग हमें ये नहीं दिया है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है. तो हमें पॉइंट्स कोलिनियर वाला भी ऑप्शन कंसिडर करना होगा और पॉइंट्स नॉन कोलिनियर वाला भी ऑप्शन कंसिडर करना होगा. इसलिए हमारा आंसर होगा बच्चों लोग 1 और 3. तो बच्चों लोग ये था अपना थर्ड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन. चलो सॉल्व करते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन को. बच्चों लोग फोर्थ सब क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस AB if coordinates of A and B are -5 and -2 and 5 respectively. But the question is, find distance AB if coordinates of A and B are -2 and 5 respectively. बच्चों लोग अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लर्न किया है, स्टडी किया है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर. तो बच्चों ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है दोनों में? 5 इज ग्रेटर, माइनस स्मॉलर इज व्हाट? -2. तो बच्चों लोग अपना फॉर्मूला रहेगा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर. तो बच्चों लोग क्या होगा फिर? 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 प्लस 2 और 5 प्लस 2 होगा बच्चों लोग 7. तो अपना आंसर होना चाहिए बच्चों लोग 7. इसको तो किसी ने भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए. क्यों? डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता. तो बच्चों लोग डिस्टेंस के लिए हमने सिंपल फॉर्मूला याद किया. फॉर्मूला होता है अपना ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. दोनों में ग्रेटर कौन सा है बच्चों लोग? 5. स्मॉलर कौन सा है? -2. ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो माइनस माइनस बन गया बच्चों लोग प्लस. 5 प्लस 2 7. दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. तो बच्चों लोग ये हुआ अपना फोर्थ. चलो अब सॉल्व करते हैं फिफ्थ को. बच्चों लोग फिफ्थ में बिटवीननेस दिया हुआ है P'Q'. दिस इज व्हाट? बिटवीननेस. डिस्टेंस PQ इज 2, डिस्टेंस PR इज 10. देन फाइंड डिस्टेंस QR. बच्चों लोग देखो, डिस्टेंस बिटवीननेस इज P देन Q देन R. P के बाद Q और Q के बाद है बच्चों लोग R. PQR. PQ इज 2. बच्चों लोग दिस डिस्टेंस इज व्हाट? 2. इतना डिस्टेंस 2 है. PQ डिस्टेंस इज 2. PR इज 10. बच्चों लोग P से लेके R तक डिस्टेंस कितना है बच्चों लोग? 10. अपने पास तो ऐसे फॉर्मूला है PQR अगर है तो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला. जो भी एंड्स के पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, डिस्टेंस PR. जो भी एंड में पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, डिस्टेंस PR इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR. ये अपने पास तो फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला याद नहीं करेंगे. क्यों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बच्चों लोग PQR
PQ is 2, distance PQ is what 2, distance PR is 10, P और R में डिस्टेंस कितना है बच्चों लोग 10। तो पूछा है डिस्टेंस QR, ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर बच्चों लोग ये बड़ा डिस्टेंस 10 है, ये छोटा वाला डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो 8 होगा। क्यों 2 और 8 बनेगा 10, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, QR डिस्टेंस 8 होना चाहिए। तो चलो रूट 96 भी नॉट करेक्ट, 20 करेक्ट नहीं, 12 करेक्ट नहीं, तो बच्चों कौन सा, ये अगर 2 है, ये पूरा अगर 10 है, तो ये QR वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों 8। तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चों लोग यहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। चलो सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। बच्चों लोग क्वेश्चन 2, ऑन अ नंबर लाइन coordinates of P, Q, R are 3, -5 and 6 respectively. बच्चों लोग on a number line coordinates of points P, Q, R are provided. Coordinate of P is 3, coordinate of Q is -5 and coordinate of R is 6 respectively. State with reason whether the following statements are true or false. बच्चों लोग हमें आंसर करना है whether the statement is true or false. बच्चों लोग फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस। तो बच्चों लोग इसको ट्रू फॉल्स सिर्फ बताना नहीं है, स्टेट विथ रीजन, रीजन भी देना है। तो बच्चों लोग क्या करते हैं फिर, डिस्टेंस पी क्यू, क्यू आर, पी आर, सभी डिस्टेंस को हम रेडी करते हैं। डिस्टेंस पी क्यू, बच्चों लोग पी का कोऑर्डिनेट है 3, पी इज कोऑर्डिनेट इज 3, Q का कोऑर्डिनेट है बच्चों लोग -5 और R का कोऑर्डिनेट है बच्चों लोग PQR, PQR, R का कोऑर्डिनेट है बच्चों लोग 6। तो these are coordinates, 3 is P का कोऑर्डिनेट, -5 Q का कोऑर्डिनेट, 6 R का कोऑर्डिनेट है। तो चलो बच्चों ये डिस्टेंस हमें लगने वाले चारों स्टेटमेंट्स में। तो चलो डिस्टेंस बना के रखते हैं। डिस्टेंस PQ, बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अभी हमें कंसीडर करना है P और Q को। P इज दिस, Q इज दिस, P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट। तो बच्चों लोग फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के लिए ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर। चलो अब डिसाइड करो, 3 में और -5 में, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर। तो बच्चों लोग 3 इज ग्रेटर बिकॉज वो पॉजिटिव है। फॉर्मूला है अपना ग्रेटर माइनस स्मॉलर, दिस इज ग्रेटर दिस इज स्मॉलर और उनकी सब्ट्रैक्शन 3 -5। तो बच्चों लोग सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, 3 + 5 हो गया 8। डिस्टेंस PQ है बच्चों लोग 8। चलो अब डिस्टेंस QR को भी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस QR, मतलब डिस्टेंस QR के लिए हमें कंसीडर करने होंगे Q और R के कोऑर्डिनेट्स, Q और R। मतलब यहाँ भी एक वैल्यू निगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, और अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर। तो बच्चों लोग दोनों में डिसाइड करो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो 6 इज ग्रेटर बिकॉज पॉजिटिव है, -5 ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर QR के लिए। तो जो लोग यहां भी 6 माइनस माइनस बन जाएगा +5, 6 + 5 होगा 11। नाउ बच्चों लोग थर्ड रिमेनिंग डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस PR। PQ हो गया, QR हो गया, अभी कौन सा डिस्टेंस बचा हुआ है, डिस्टेंस PR। तो चलो PR के लिए, P और R के लिए, P का कोऑर्डिनेट 3 है, R का कोऑर्डिनेट 6 है। फॉर्मूला वही ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा आता है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर। चलो बच्चों लोग 3 और 6 में डिसाइड करो ग्रेटर कौन सा है। तो ग्रेटर कौन सा है बच्चों लोग, 6 माइनस स्मॉलर इज व्हाट, 3। डिस्टेंस हो गया बच्चों लोग 6 - 3 इज 3। तो बच्चों लोग स्टेट विथ रीजन, तो हमने ये क्या कर लिया बच्चों लोग, ये रीजन तैयार कर लिया। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ बोला नहीं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया और डिस्टेंस देख के अब ये
स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है उनको डिसाइड करेंगे बच्चों। तो चलो ये डिस्टेंस हमें हर एक में मीन्स इसमें पहले मेंशन करना होगा कि डिस्टेंसेस आर दिस। मतलब नाउ दिस वन कंसीडर दिस डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी आर, ऐसा इक्वेशन है दिया हुआ। चलो बच्चों लोग डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू है बच्चों लोग 8। डिस्टेंस पी क्यू इज व्हाट 8 प्लस डिस्टेंस क्यू आर, बच्चों लोग डिस्टेंस क्यू आर की वैल्यू है अपने पास 11 इक्वल टू डिस्टेंस पी आर, बच्चों लोग डिस्टेंस पी आर की वैल्यू है 3। हमने ये डिस्टेंस यहां से ले लिए। पी क्यू की वैल्यू है 8, डिस्टेंस क्यू आर की वैल्यू है 11 और डिस्टेंस पी आर की वैल्यू है बच्चों लोग 3। अब सोचो 8 प्लस 11 3 होता है क्या? अब सोचो 8 प्लस 11 3 होता है क्या? तो बच्चों लोग 8 प्लस 11 नॉट इक्वल टू 3, इसीलिए हम बोलेंगे इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। It is what false statement. Why? Because of this reason. This is what? This is support. तो मतलब ये support है। मतलब ये था अपना फर्स्ट सब क्वेश्चन या फर्स्ट स्टेटमेंट। चलो कंसिडर करते हैं अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को। मतलब अपना सेकेंड स्टेटमेंट, दिस इज आवर सेकेंड स्टेटमेंट। डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू। मतलब जो भी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किए हैं वही यहाँ भी यूज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंसेस यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो ये जो कैलकुलेटेड डिस्टेंस है इसमें पुट करते सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। डिस्टेंस पी आर, मतलब डिस्टेंस पी आर की वैल्यू अपने पास है 3 प्लस डिस्टेंस आर क्यू। डिस्टेंस आर क्यू का मतलब डिस्टेंस क्यू आर बी होता है बच्चों। नासिक मुंबई डिस्टेंस जितना होगा उतना ही मुंबई नासिक भी होगा। मीन्स डिस्टेंस MN मुंबई नासिक और डिस्टेंस नासिक मुंबई क्या होता है बच्चों लोग? सेम ही होता है। तो डिस्टेंस आर क्यू मीन्स डिस्टेंस क्यू आर भी होता है, उसकी वैल्यू है बच्चों लोग 11। डिस्टेंस आर क्यू की वैल्यू है अपने पास 11 और डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू अपने पास है 8। डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू है अपने पास 8। तो बोलो बच्चों लोग सी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? 3 प्लस 11 8 होता है क्या? 3 प्लस 11 8 होता है क्या? तो 3 प्लस 11 नॉट इक्वल टू 8। 3 प्लस 11 8 नहीं होता है। तो बच्चों लोग अपना आंसर होगा देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये बच्चों लोग स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है। चलो अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट को। बच्चों लोग थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड इज दिस डिस्टेंस आरपी इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस आरपी प्लस डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस आर क्यू। डिस्टेंस आरपी प्लस डिस्टेंस पी क्यू होता है डिस्टेंस आर क्यू, ऐसा उनका स्टेटमेंट है और हमें डिसाइड करना है इज इट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स? बच्चों लोग वैल्यूज तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, चलो इनको रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन में। वैल्यूज तो अपने पास पहले स्टेटमेंट के लिए ही कैलकुलेट की थी, तो इनको यूज कर लेते हैं यहाँ। डिस्टेंस आरपी, चलो डिस्टेंस आरपी का मतलब होता है डिस्टेंस पी आर भी। तो डिस्टेंस पी आर है अपने पास 3, आरपी और डिस्टेंस पी आर क्या होता है? सेम ही होता है। प्लस डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू है बच्चों लोग 8। डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू है 8। डिस्टेंस पी क्यू इज 8 और डिस्टेंस आर क्यू मतलब डिस्टेंस क्यू आर भी होता है। डिस्टेंस क्यू आर कितना है अपने पास? 11। आर क्यू मतलब क्यू आर भी होता है। तो बच्चों लोग देखो अब 3 प्लस 8 11 बनता है क्या? 3 प्लस 8 11 इक्वल टू क्या है? 11। 3 प्लस 8 भी 11 होता है, 11 इक्वल टू 11। तो स्टेटमेंट क्या है बच्चों लोग? इट इज ट्रू स्टेटमेंट। देयरफॉर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
तो बच्चों लोग ये हुआ अपना थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड इज व्हाट ट्रू। चलो अब चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को। बच्चों लोग फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ इज डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर। स्टेटमेंट ऐसा है, इसको चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है। मतलब हमने वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस पी आर, बिकॉज दे हैव गिवन coordinates 3, -5, 6 and using them we have calculated distances। तो चलो बच्चों लोग अपने पास डिस्टेंस रेडी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं इक्वेशन ट्रू है या नहीं है। डिस्टेंस पी क्यू, चलो पी क्यू की वैल्यू है अपने पास 8 माइनस डिस्टेंस पी आर, पी आर डिस्टेंस पी आर, चलो पी आर की वैल्यू है अपने पास 3 इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू है बच्चों लोग अपने पास 11। तो अब ये सोचो 8 माइनस 3 11 होता है क्या? तो 8 माइनस 3 तो क्या होता है बच्चों लोग 5, 5 इक्वल टू 11 होता है क्या? तो नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 8 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 11। तो बच्चों लोग दिस इज व्हाट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो चलो ये था अपना फोर्थ सब क्वेश्चन। यहाँ अपना क्वेश्चन 2 एंड होता है, खत्म होता है। तो चलो सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन थर्ड को। चलो क्वेश्चन थर्ड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो। चलो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स गिवन बिलो। Hence find the distance between each pair. We have to find distance between each pair of points. तो चलो सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं डिस्टेंस को। सॉल्यूशन फर्स्ट 3, 6, फर्स्ट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है चलो 3 and 6। चलो अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला तो क्या होता है? डिस्टेंस is what? Greater coordinate minus smaller coordinate. Greater coordinate minus smaller coordinate. This is formula to calculate distance between any two points. Greater coordinate minus smaller coordinate. This is the formula used to calculate distance. तो चलो डिसाइड करो दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर ग्रेटर होगा। तो चलो ग्रेटर इज व्हाट 6 माइनस स्मॉलर इज व्हाट 3। तो फर्स्ट पेयर में डिस्टेंस कितना होगा चलो 3। फर्स्ट पेयर में डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स का। चलो कैलकुलेट करते हैं आप सेकेंड को। सेकेंड इज व्हाट -9 माइनस 1। अब सेकेंड, तो चलो सेकेंड के कोऑर्डिनेट्स हैं -9 एंड -1, -9 -1। मतलब डिस्टेंस ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, वही फॉर्मूला यूज करना है हमें अभी सबके लिए। तो चलो ग्रेटर कोऑर्डिनेट दोनों माइनस है, दोनों निगेटिव है। तो चलो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर इज ग्रेटर। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो पॉजिटिव इज ग्रेटर, और दोनों निगेटिव है तो उल्टा होता है, जो छोटा होता है दिखने में वो बड़ा होता है। तो मतलब ग्रेटर कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होने के कारण जो छोटा है वो बड़ा है। ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा बच्चों? -1 माइनस ग्रेटर माइनस, अब स्मॉलर को लिखना है माइनस ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो बच्चों लोग दोनों अगर निगेटिव वैल्यूज है तो दोनों में जो छोटी दिखती है वो वैल्यू वास्तव में क्या होती है? बड़ी होती है। चलो इसको सिंप्लीफाई करें। -1 माइनस माइनस होगा बच्चों लोग प्लस। नाउ एक वैल्यू माइनस है एक वैल्यू प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन करके बड़े का साइन देना पड़ता है। एक माइनस है एक प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन करके बड़े का साइन। 9 -1 होगा 8 और वो भी प्लस 9 का साइन।
और बच्चों लोग वैसे भी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। ऐसा कभी बोलेंगे कि आप नासिक मुंबई डिस्टेंस -185 किलोमीटर है, नासिक मुंबई -185, ऐसा माइनस बोलेंगे क्या आप? नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव ही होनी चाहिए। चलो ये था सेकेंड पेयर का डिस्टेंस। चलो अब कैलकुलेट करते हैं थर्ड पेयर को, थर्ड पेयर का डिस्टेंस। और चलो थर्ड में है -4 and 5, थर्ड में है -4 and 5, -4 and 5। तो चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। नाउ डिसाइड, वन वैल्यू इज पॉजिटिव, वन वैल्यू इज नेगेटिव, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा बच्चों लोग? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव ग्रेटर 5, देन माइनस फॉर्मूला का, और स्मॉलर क्या है बच्चों लोग? -4, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। सिंप्लीफाई, 5 माइनस माइनस बन जाएगा बच्चों लोग प्लस, 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। सिंपल ही था। चलो बच्चों लोग फोर्थ, बच्चों लोग फोर्थ में बुक में छोटी सी गलती है। फोर्थ डिस्टेंस है अपना, पॉइंट्स है अपने 0 और -2, लेकिन बुक में 0 की जगह उन्होंने लिखा है x, 0 की प्लेस में उन्होंने क्या दिया है? x दिया है, तो x नहीं है वो क्या है बच्चों लोग? वैल्यू 0 है। बच्चों लोग फोर्थ 0 -2, बुक में क्या है? x -2, तो बच्चों लोग x -2 का डिस्टेंस हम फाइंड भी नहीं कर सकते, तो 0 है वहां, 0 -2 करेक्ट कर लो। बच्चों लोग डिस्टेंस इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर, फॉर्मूला वही। बच्चों लोग नाउ एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ही नहीं बोल सकते, चलो इसको साइन ही नहीं होता। तो बच्चों लोग अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? तो ये 0 वाला जो नॉन नेगेटिव है, 0 ग्रेटर है, माइनस स्मॉलर कौन सा है बच्चों लोग? -2, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। चलो सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों लोग +2, माइनस माइनस +2, 0 + 2 होगा 2, 0 + 2 होगा 2। तो बच्चों लोग ये था अपना फोर्थ। चलो सॉल्व करते हैं फिफ्थ को, फोर्थ फिफ्थ लेते हैं। तो जो फिफ्थ में कोऑर्डिनेट्स है x + 3, x - 3, x + 3 and x - 3। ना चलो डिस्टेंस का वही फॉर्मूला, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बोलो अब डिसाइड करो दोनों में ग्रेटर कौन सा है। तो जो दोनों में x है, दोनों में x है, तो कंपैरिजन के लिए आसान हो जाएगा, दोनों में x है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है चलो माइनस है, तो ये कौन सा हुआ? ग्रेटर कोऑर्डिनेट, ये क्या हुआ? स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो चलो ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है? x + 3 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है चलो? x - 3, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ओके, सिंप्लीफाई, ब्रैकेट हटा देते हैं बच्चों लोग। ब्रैकेट ओपन करते टाइम अब ये माइनस है, तो ये माइनस इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। चलो साइंस चेंज करने होंगे, माइनस की वजह से ये बन गया -x, और ये माइनस माइनस बन जाएगा बच्चों लोग प्लस। माइनस के कारण हमें साइन चेंज करने होंगे, -x और माइनस माइनस बनेगा प्लस। चलो +x -x क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 3 + 3 डिस्टेंस आएगा 6। डिस्टेंस इज व्हाट? 6 यूनिट्स। बच्चों लोग अब 50 हो गया 6th। चलो अब 6th। 6 में बच्चों लोग -25 एंड -47। डिस्टेंस वही फॉर्मूला, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। मतलब नाउ ग्रेटर, दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होता है? उल्टा होता है। नेगेटिव में वास्तव में जो छोटी दिखती है वो वास्तव में क्या होती है? बड़ी वैल्यू होती है। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट अब कौन सा होगा चलो? -25 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? -40।
7। तो बच्चे लोग निगेटिव, दोनों निगेटिव्स हैं, तो निगेटिव में उल्टा होता है, जो छोटा दिखता है वो वास्तव में क्या होता है, बड़ा होता है। चलो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। -25 माइनस माइनस बनेगा बच्चे लोग प्लस 47, माइनस माइनस होगा प्लस। नाउ एक वैल्यू निगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बड़े में से छोटे को हटा दो और बड़े का साइन देते हैं। तो चलो 47 माइनस 25 करना पड़ेगा। 47 माइनस 25 होगा 22 और गिव साइन ऑफ ग्रेटर, ग्रेटर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। याद रखो डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चों लोग लास्ट है 7th 80 और -85, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। सिंपल है, बस यही इतना ही काम है बच्चों, छोटा सा। तो 7 को आप सॉल्व कर लीजिए। बच्चों लोग ये था अपना क्वेश्चन 3, यहाँ कंप्लीट हुआ। बच्चों लोग अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट के जो भी क्वेश्चन बाकी है उनको हम सॉल्व करेंगे।